Yes. So in the last class, we discussed about the concept of abatement, attempt, and attempt. These three are inchoate crimes. Inchoate crimes are those crimes which are incomplete, which is not a complete crime, which are not full crimes. So we can say these are inchoate crimes. So in today's class, we will discuss about the abatement provisions, and also we'll discuss again about the criminal conspiracy, so that we can say that at least in this 5 days we have covered the basics of criminal law and the inchoate crime topic and types of punishment and also stages of crime that we have already covered, right? Okay, come to the provision of attempt that is given in Bharatiya Nyaya Samhita, and also just refer at least once the provisions of Indian Penal Code, that is from section 107 to 119 of Indian Penal Code, that is talking about the concept of abatement. Here in Bharatiya Nyaya Samhita, the abatement is given under chapter number 4 from section 45 60. Total 16 provisions are there for the attempt. All the provisions must be in your knowledge, because a question can be asked that which section deals with this issue. So we must be aware about that. Section 45. So our task is to complete abatement, criminal conspiracy, and further if any topic which can be covered in this next talk, we will try to cover. 45. Abatement of thing. A person abates the doing of a thing who instigates any person to do anything. अगर आप किसी को उकसाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, to do a thing लिखा है यहाँ पे, इन्होंने ऑफेंस मेंशन नहीं किया है. फर्दर ये आपको बताएंगे कि वो जो थिंग हो रही है वो एक्चुअल में एक ऑफेंस है. अभी इन्होंने क्या लिख दिया, instigate any person to do that thing. That thing means a person awaits the doing of a thing. ऊपर बता दिया, ऊपर वो जो thing बताया तो बोले उस चीज को करने के लिए अगर instigate करते हैं, so that is that thing. Engage one with one or more other person or persons in any criminal conspiracy for doing of that act. अगर ये engage होते हैं, इंडिविजुअल पर्सन वो क्या कर रहा है, किसी के साथ मिल रहा है, और जिनके साथ मिल रहा है उनको बोल रहा है कि तुम्हें ऐसा करना है. So he is engaging with someone. Instigating is what? Instigating is what only मैंने आपको भड़का दिया कि ये जाके करके आना है, and it is now your duty to do that. But engaging with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an illegal act or omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing. बोल रहे हैं कि अगर आप कोई भी क्रिमिनल एक्ट करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का प्लान करते हैं. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज एक्चुअली एन इनपुट. आप किसी और के साथ मिलते हैं, मिलने के लिए आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और उस कॉन्स्पिरेसी का आपका क्लियर प्लान है कि कोई ना कोई ऑफेंस कमिट हो जाए. सो यू आर बेसिकली एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट, एंड देयरफॉर द पर्सन इज गोइंग टू बी commit that act. So you are entering in an agreement. So in an agreement is basically the conspiracy, if it can be an act or it can be an omission, so that by doing that act or omission you are taking everything in pursuance of that conspiracy, or in order to doing that thing, for what purpose you are entering into this agreement, that will cover in the second part, that is of conspiracy. Third is intentionally aids by an illegal act or illegal omission the doing of that thing. आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट में, आप उसको एड कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं. Two persons are fighting, you are recognizing or remembering that person. Can you remember that on that day he said this also to you, he said to your father this statement. So basically आप उसको एड कर रहे हैं जिससे वो फर्दर कुछ और एक्स्ट्रा ऑफेंस कर सके.
तो दो जनों के बीच में झगड़ा है, आप उसको और जाके ये लो तलवार, दिस दिस विल हेल्प यू टू किल द पर्सन, दिस विल हेल्प यू टू टेक रिवेंज। आप जा रहे हैं तो आपको तलवार दे दी, बंदूक दे दी, चीज कुछ दे दी, या दो झगड़ा कर रहे हैं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके साथ उन्होंने एक्ट कर दिया। सो वी कैन से दैट द पर्सन हैज इंटेंशनली। क्वेश्चन जो बनेगा आपका वो बेसिकली बनेगा कि ये जो तीन बातें हुई हैं, इंटेंशनल एक्ट, कॉन्स्पिरेसी और इंस्टिगेशन, क्या ये तीनों चीजें हर बार एक साथ आएंगी या एक भी होगी तो भी पॉसिबल है? तो सिंपल सी बात है, हर पॉइंट के बाद इन्होंने और लिख के मेंशन किया है। तो में से कुछ भी होगा दैट विल बी कवर अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ अबेटमेंट। अगर एक सिंपल लाइन में अबेटमेंट का मीनिंग आपको समझना है, दैट इज किसी ने आपको उकसाया कि आपको ऐसा करना है, उसका उकसाना ही काफी है, आप चाहे कुछ करो चाहे ना। अबेटमेंट करना इज ओनली टू instigate, to intentionally, to engage in conspiracy. It does not require any further act. Just because you have instigated someone, just because you have conspired with someone or intentionally hit someone, that is enough for the offense of abatement. Very simple. Question can be like, abate किया है लेकिन further जो person है उसने offense commit नहीं किया, then what will happen? Still you are liable for the abatement. Second question can be, जिस चीज के लिए अबेटमेंट किया था वो ना करके कुछ और करके आ गया, स्टिल यू आर लायबल फॉर द ऑफेंस। जिस ऑफेंस के लिए आपने अबेटमेंट किया उसके लिए लायबल है, और वो जो पर्सन जो करके आया है कमिट, उसके लिए वो खुद लायबल है, क्योंकि हमने उसको मर्डर करने के लिए बोला था, वो उसके घर में से चोरी करके आ गया। एक्सप्लेनेशन वन, a person who by willful misrepresentation or by willful concealment of medical facts which he is bound to disclose, voluntary causes or procures or attempt to cause or procure a thing and set to instigate the doing of that thing। जब कभी भी कोई बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन के साथ या बिल्कुल कंसीलमेंट ऑफ कोई फैक्ट है उसको वो या मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, उसको ना बता के कुछ और बता, then it is concealment or misrepresentation। he is bound to disclose, और पर्सन डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड है। voluntary causes or procure or attempt to cause or procure the thing to be done, और जिससे वो चीज हो जाए। अगर मैं आपको कोई चीज ना बताऊं और मैं आपको बोलूं कि उस कमरे में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपकी एंट्री अलाउड है और वहां पे आपको गार्ड भी नहीं रुकेगा, और मुझको ये पता है कि वहां पे है और गार्ड खड़ा होगा, सीधे शूट कर सकता है, और आप वहां जाओगे उस रूम में और उसके लिए पर्सन के लिए आप जिससे मिलना चाहते हो उससे आप मिल सकते हो। मैंने अगर किसी को ऐसा बोला misleading the information, then I can say here abatement, that is instigation of doing that thing is being done in form of abatement। A public officer is authorized by warrant from a court to apprehend जेड। ए जो कि पब्लिक ऑफिसर है उसको कोर्ट से वारंट है कि वो जेड को अरेस्ट करे। बी नोइंग द फैक्ट, बी को फैक्ट पता लगा कि अच्छा अरेस्ट करने आ रहे हैं जेड को, तो बी क्या करते हैं, बी नोइंग दैट फैक्ट एंड आल्सो दैट ही इज नॉट जेड willfully represent a that C is जेड। ए जो कि अरेस्ट करने वाले हैं बी को अरेस्ट करने के लिए आए, जेड को अरेस्ट करने के लिए आए। बी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि पर्सन सी इज एक्चुअली दिस इज जेड। अरेस्ट वाले करने को पर्सन नहीं पता कि वो सी है या जेड है, बी ने बताया है कि यही जेड। पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड दैट पर्सन सी को। So here B has done willful misrepresentation, concealment of the fact, therefore he has instigate the doing of that thing, ये चीज cover। Explanation number two, either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the of to aid the doing of that। जो कोई भी either prior to or at the time of commission, या तो एक्ट होने से पहले या जब एक्ट commission of the act हुआ at the time only, does anything in order to facilitate the commission,
कमीशन होने में, एक्ट होने में कुछ फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। मर्डर करवाने के लिए आप चाकू हाथ में दे रहे हैं जब दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, तो एट द टाइम यू आर एक्चुअली व्हाट डू यू आर डूइंग, यू आर इंटेंशनली किलिंग and thereby facilitate commission, so is said to aid the doing of that thing। तो ये माना जाएगा कि आपने एड किया है, सहायता की है उस एक्ट को कमिट होने में, उस एक्ट का। क्लियर है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड 2। आगे आते हैं सेक्शन 46 अबेटर की बात। अब एक क्वेश्चन आपके मन में भी आएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में फर्क क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में रिक्वायरमेंट थी कुछ एक फर्दर एक्शन होना चाहिए इन फर्दरेंस ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, एग्रीमेंट बना हमारा। लेकिन अबेटमेंट के लिए कम्युनिकेशन इज इनफ। आपने कम्युनिकेट किया किसी को कि यार मेरा उससे ऐसा ऐसा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मिलके ये काम करो और मैं तुम्हारा पैसा दूंगा, या जो भी whatever the thing you are going to give, whatever the benefit the person is going to receive, जब भी वो कुछ करने वाला है सुपारी देते हैं हम, basically what is that? That is actually abatement and you are engaging the person for that, so you are actually into criminal conspiracy। So अब वो पर्सन मर्डर नहीं भी करे, वो घर जाके सो जाए या उसकी डेथ हो भी जाए, still you are liable for abatement by conspiracy। बट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कब लायबल है? जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले हैं उस एक्ट में, जो आपने एग्रीमेंट बनाया है उसमें, प्लस प्लस देयर शुड बी सम एक्ट, ओवर्ट एक्ट which is done by in pursuance of that agreement। जो एग्रीमेंट बना उसके परसुएंस में आपने कुछ ना कुछ एक्ट किया है। अब आपको अगर मर्डर करना है तो हो सकता है आप बंदूक खरीदने गए हो सकता है आप चाकू खरीदने गए हो, कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जो आप परचेज करने गए हैं। सो वी कैन से दैट आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने का प्लान बनाया, उसमें आपने एक फर्दर एक्ट भी किया, ये लायबल फॉर क्रिमिनल। अबेटमेंट में, कॉन्स्पिरेसी में आप लायबल तभी हो जाएंगे द मोमेंट यू आर एंगेजिंग इन द कॉन्स्पिरेसी। फर्दर एक्ट हो कुछ भी या नहीं हो ये मैटर नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज यू एंगेज आप लायबल। अब अवेटर कौन हो सकता है देख लीजिए। पर्सन अवेट्स एन ऑफेंस awaits either commission of an offense or commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention knowledge as that of awaiter। अवेटर वो पर्सन होता है जो किसी ऑफेंस को अवेट करता है या कोई ऐसी चीज को अवेट करता है जो कि एक ऑफेंस हो जाएगी, और द कमीशन ऑफ एन एक्ट व्हिच वुड बी एन ऑफेंस, ये हम पढ़ चुके हैं, इफ कमिटेड बाय पर्सन, और ये वही पर्सन कर सकता है जो एक्चुअल में उस ऑफेंस की नॉलेज या इंटेंशन रखता हो कि ये ऑफेंस इस तरह से हो सकता है, इस तरह से ये चीज हो सकती है, जिसकी इंटेंशन या नॉलेज में वो चीज क्लियर है। इंटेंशन इज व्हाई the act is done, right? How an act will done, that is intention, and motive is why an act is done। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिफरेंस बताया था, मोटिव होता है एक एक्ट होने के पीछे रीजन, why, इंटेंशन कैसे करना है, how an act to be done, और नॉलेज कि ये जो एक्ट है इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, that will be considered as a knowledge। कि मैं अगर तलवार इसके पैर पे मारूंगा तो क्या होगा और गर्दन पे मारूंगा तो क्या होगा, तो ये मेरी नॉलेज है। इंटेंशन, इंटेंशन क्या है? तलवार से मारना, दैट इज इंटेंशन, कि मुझे क्या तलवार से मारना, किस जगह मारना है वो आपका, कि कहाँ मारने का आपका सोचा थॉट प्रोसेस था, कहाँ आप इंटेंशन लगा के बैठे थे कि मारूंगा तो ऐसा होगा, दैट विल कवर अंडर द टर्म नॉलेज। मेंटल लेवल पे देयर आर ill will, good will, good faith, bad faith, negligence, intention, motive, तरह की कुछ टर्म्स हैं जो एविडेंस लॉ के अंदर कवर होती है। अगर आप सेक्शन याद है, सेक्शन अभी एविडेंस लॉ में 14 हुआ करता था पहले, अब तो आई गेस 12 हो गया है। स्टेट ऑफ माइंड के रिलेटेड जो बात कर, स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करने के लिए 7 चीजें होती हैं, 8 चीजें होती हैं, इनके हिसाब से आप स्टेट ऑफ माइंड प्रूव कर सकते हैं किसी भी पर्सन। तो वही वाली बात है यहाँ पे। आगे आइए एक्सप्लेनेशन 1, द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट may amount
to an offense, although the abater may not himself be found to do that act. Illegal omission का भी आप abate कर रहे हैं. Abatement of the illegal omission of an act may amount to an offense, although the abater may not himself be bound to that act. आप खुद बाउंड नहीं है, आप जेलर नहीं है, लेकिन आप जेलर को बोलते हैं कि तुम्हें इस प्रिजनर को खाना नहीं ऑफर करना. So you are not bound, the jailer is bound, but you are abating that jailer कि आपको ये खाना ऑफर नहीं करना है, इसको 4 दिन भूखा मारो. So jailer is doing the act of omission. वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन उसको अबेट किसने किया? आपने. तो आप एज अ अबेटर लाइबल है, और जेलर जो है वो एज अ ओमिशन जो उसने किया है, पब्लिक सर्वेंट ने डिसोबे किया है लॉ को, तो वो उस हिसाब से लाइबल है. Explanation number 2, to constitute the offense of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed or the effect requisite to constitute the offense should be caused. जो मैंने आपको बात बताई, अबेटमेंट के लिए ऑफेंस का कमिट होना बिल्कुल कंपलसरी है, नेसेसरी नहीं है, ना ही कि आप जो इफेक्ट चाहते थे वही इफेक्ट आए. ये दोनों बातें बिल्कुल जरूरी नहीं है. जस्ट आपने अबेटमेंट किया है किसी को, यू आर लाइबल. A instigate B to murder C, B so A is guilty of abating B to commit murder. A ने B को instigate किया, C को murder करो, B ने कर दिया, still A is liable. A instigate B to murder D, B in purpose of instigation steps D, D recovers from the wound, A is guilty of instigating to commit murder. Effect murder का था, लेकिन murder नहीं हुआ, वो जिंदा बच गया, still आपको abatement of murder के offense में punishment दिया जाए. क्लियर है? अब सेक्शन 2 आपको समझ में आ गया है कि अगर नहीं भी होगा तो भी आप लायबल हैं. तो एक बार हम सेक्शन 49 पे हम बात करते हैं कि आपको पनिशमेंट क्या मिलेगा. व्हाट पनिशमेंट विल यू गेट इफ यू आर डूइंग अबेटमेंट? Punishment of abatement if act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment. अगर किसी ऑफेंस के अबेटमेंट का प्रॉपर डिफाइन नहीं है पनिशमेंट, जैसे वेजिंग वॉर का ऑफेंस हम देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है अटेम्प्ट टू वेजिंग वॉर, अबेट्स वेजिंग वॉर इज आल्सो पनिशेबल, और उसी प्रोविजन के अंदर है. तो अगर स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है अबेट का, तो अबेटमेंट के लिए क्या पनिशमेंट होगा? Whoever abates any offense shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement, अगर commit हो गया, no express provision is made by this संहिता for the punishment of such abatement, और express provision नहीं है, be punished with punishment provided for the offense. तो जिस offense को आपने abate किया है, offense commit हो गया, तो आपको liable उसी offense के लिए किया जाएगा जो ऑफेंस कमिट किया है. तो ऑफेंडर जिसने कमिट किया वो तो सजा पाएगा ही, उसको तो मिलेगी ही. आपको अबेटमेंट में सजा मिलेगी, और वही सजा मिलेगी जो उस ऑफेंस की जिसके लिए आपने अबेट किया. एक्सप्लेनेशन में लिखा है an act or offense is said to be committed in consequence of abatement when it is committed in consequence of instigation, pursuance of conspiracy or with aid which constitute the. और अबेटमेंट हम 3 चीजों से कंसीडर करेंगे, या तो आपको इंस्टिगेट करता है कोई, या आपको कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व किया जाता है, या कोई एड करता है, तो वो सब अबेटमेंट ही माना जाए. There are 2 illustration. A instigates to false evidence. B in consequence of instigation commits the offense. A is guilty of committing that offense and is liable to the same punishment as B. आपने बी को बोला है कि आपको झूठे एविडेंस देने, बी एग्री हो गया, बी दे भी देता है, आप वही ऑफेंस के लिए लायबल हो जो बी लायबल है. बी भी फॉल्स एविडेंस देने के लिए लायबल है, आप भी फॉल्स एविडेंस देने के लिए लायबल माने जाओ. A and B conspires poison Z. A in pursuance of procure the poison and deliver it to B in order that he may administer it to Z. एक और B ने कॉन्स्पिरेसी करी पॉइजन देना है, तो क्या हुआ? ए ने कॉन्स्पिरेसी किया, पॉइजन को प्रोक्यूर किया एंड डिलीवर इट टू, दे दिया इन ऑर्डर टू कमिट, और एडमिनिस्टर्ड टू जेड, जेड को खिलाने के लिए बी को दे दिया. बी इन पर्सन्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी एडमिनिस्टर्ड द पॉइजन टू जेड इन सेंस एंड देयरबाय कॉजेस जेड्स डेथ. ए नहीं है, ए अवेलेबल नहीं है, लेकिन बी को जहर दिया गया था मारने के लिए और बी ने मार दिया. हियर बी इज गिल्टी.
बी तो गिल्टी है मर्डर का, क्योंकि दोनों ने प्लान बनाया कि इसका मर्डर करना है, तो जहर लगा के दूंगा, तुम उसके में मिला देना। उसने बोला ठीक है मिला दूंगा, तो कॉन्स्पिरेसी हुई टू कमिट एन ऑफेंस, तो कॉन्स्पिरेसी है। तो अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी में तो आप वैसे लाइबल हो गए, क्योंकि आपका एक्ट हो या नहीं हो, एक्सपीरियंस कह दिया है कि आप लाइबल। अब आपने जिसने एक्ट किया आपके साथ वाले ने, तो वहां पे लिख दिया है आप नहीं है, आपके रीजंस में ऑफेंस हुआ है, डी इज गिल्टी मर्डर, ए गिल्टी अबेटिंग ऑफ ऑफेंस बाय कॉन्स्पिरेसी एंड इज लायबल टू द पनिशमेंट फॉर। और बी ने तो जहर दिया है तो वो ए ने उसको कॉन्स्पिरेसी में पार्ट बनाया और अबेट किया, देयरफॉर ए भी मर्डर के लिए लाइक। आई होप 49 आपको क्लियर है। आगे आते हैं, वापस एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पे आएंगे हम। It is not necessary that the person acquitted should be capable by law of committing an offense. For that, he should have the same guilty intention or knowledge as that of abettor or any guilty intention or knowledge. ये necessary नहीं है, जो पर्सन अबेट हुआ है, जिसको अबेट किया गया है, शुड बी केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। हो सकता है आपने एक छोटे बच्चे को जिसका एज 7 साल से कम है, उसको बोला कि ये डब्बी है, इसको जाके आपको उनके खाने में मिला के आना है, वो केपेबल नहीं है एज पर द लॉ, क्योंकि उसको जनरल डिफेंस में डिफेंस मिल जाएगा। वो एक अनअवेयर है अबाउट द फैक्ट कि एक्चुअल में क्या है, वो तो दवाई समझ के मिला के भी आ सकता है। स्टिल यू आर लायबल। जो एक्चुअल में ऑफेंस कर रहा है वो केपेबल नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, एंड आपने उसके थ्रू कोई ऑफेंस कराया है, तो आपकी लायबिलिटी है, आपको एज एन अबेटर पनिश किया जाए। A with guilt intention awaits a child, a person of unsound mind, to commit an act which could be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense. Having the same intention as A, whether the act committed or not, is guilty of abetting the offense. तो A जो है एक बच्चे को या अनसाउंड माइंड पर्सन को अबेट करता है कि ये ऑफेंस करना है, और वो पर्सन अगर साउंड माइंड का होता और चाइल्ड ना होके मेजर होता, और वो ऑफेंस करने कर सकता था, अगर वो होता तो पनिशमेंट मिलता उसको, लेकिन उसने कमिट किया है आपके बिहाफ पे, आप एज एन बेटर लाइबल हैं। और एक लास्ट में लाइन लिख दी कि चाहे ऑफेंस कमिट हुआ हो या नहीं हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन 2 पहले ही पूछ चुका है, आपने अबेटमेंट किया है, एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है ये नेसेसरी हमारे लिए नहीं। इलस्ट्रेशन आगे है, intention of murdering Jared instigate be a child under 7 years of age to do an act which causes Jared's death. B on consequence of the abatement does the act in the absence of A and thereby causes Jared's death. Here, though B was not capable by law of committing an offense, A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable by law of committing an offense and had committed murder, and he is therefore subject to the punishment of death. ए एक 7 साल से बच्चे से डेथ कॉज करवाता है। अब एज पर द लॉ 7 साल से कम का बच्चा कुछ भी ऑफेंस करे तो कोई पनिशमेंट नहीं है, बट स्टिल जो अबेटर है जिसने अबेटमेंट किया है उसकी लाइबिलिटी है, उसको पनिशमेंट मिलेगा एज पर वन सेक्शन 49, और उसको डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, कुछ भी वो मिलेगा। अब आपका एक होमवर्क है, इलस्ट्रेशन सी को आप खुद से पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन 4 पे आते हैं हम। Abatement of an offense being an offense, the abatement of such an abatement is also an offense. अगर आपने एक ऑफेंस, आपने ए को बोला कि जाके ये है ऐसा ऐसा आपको करना है, आपने इंस्टिगेट किया, लालच देके किया है, जैसे भी किया, एक पर्सन ने आपकी बात बोले ठीक है काम हो जाएगा, वो किसी और को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हें ये सब कुछ करना है। सो हेयर व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर, अबेटमेंट जिसने किया वो अबेटर है, वो नंबर 1। जिसको अबेट किया वो एक्चुअल ऑफेंडर, वो खुद क्या कर रहा है, वो फिर किसी और को अबेट कर रहा है। सो अबेटमेंट होने के बाद फिर अबेटमेंट हो रहा है, सो स्टिल बोथ द अबेटर्स आर लाइव। देखिए इलस्ट्रेशन में, ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड। ए इंस्टिगेट करता है बी को कि तुम सी को जाके बोलो कि वो डी,
तो इंस्टिगेट कौन कर रहा है? ए कर रहा है, बी। और बी इंस्टिगेट किसको करेगा? सी को। तो क्या कह सकते हैं हम? ए भी लाइबल है, बी भी लाइबल है फॉर द ऑफेंस। बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी मर्डर जेड। बी क्या कर रहा है? इंस्टिगेट कर रहा है कि आपको जेड का मर्डर करना है, एंड सी कमिट्स दैट ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बी's इंस्टिगेशन। और सी फिर क्या कर रहा है? मर्डर कर देता है। बी इज लायबल टू बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस with the punishment of murder, and A and B to commit the offense. A and B, A instigate B to commit the offense, A is also liable to the same. तो B ने इंस्टिगेट किया है तो मर्डर के लिए लायबल, और B को A ने इंस्टिगेट किया था तो A भी मर्डर के लिए लायबल होगा। Explanation 5. It is not necessary to the commission of the offense of abatement by conspiracy that the abater should concert the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in conspiracy in pursuance of which the offense is committed. Explanation 5 कह रहा है कि हर एक्ट का ए से जेड तक की कहानी किसी मेंबर ऑफ कॉन्स्पिरेसी जो भी बन रहे कॉन्स्पिरेटर बन रहे हैं उनको पता होना जरूरी नहीं है। A concerts with B a plan of poisoning Z. A B के साथ प्लान बनाता है कि Z को पॉइजन दे। It is agreed that A shall administer the poison, और ये एग्री होता है कि A Z के खाने में मिलाएगा। B then explain the plan to C, mentioning that a third person is to administer the poison, but without mentioning A's name. C agrees to procure the poison. C को बिना बताए कि कोई एक थर्ड पर्सन है वो डालेगा पॉइजन, तुम्हें तो सिर्फ पॉइजन खरीद के लेके आना है, and procures and deliver it to B, और B को डिलीवर करना है for the purpose of its being used in the manner explained, जिससे मर्डर हो सके, डेथ हो सके। A administer the poison, A ने डाल दिया पॉइजन, A और कॉन्स्पिरेसी में पार्ट बना वो B के साथ, अबेटर हो गया। C भी यहाँ पे अबेटर की तरह कंसिडर किया क्योंकि उसने जो एक्ट किया उसके एक्ट जो पॉइजन लाने का तुम्हें उसने पॉइजन लाया तो वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, देयरफॉर ही इज आल्सो लायबल। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि और का तो कोई मिलना जुलना कभी नहीं हुआ, बातचीत नाम नहीं पता, तो व्हाई ही इज लायबल? बिकॉज ही नोस कि ऑफेंस होने वाला, अल्टीमेट चीज उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, अल्टीमेट चीज पता है, इसलिए वो ऑफेंस कर दिए और पॉइजन लेके आए। सो एयर आगे देख लीजिए, though A and C had not conspired together, yet C has been engaged in conspiracy in consequence of which Z has been murdered. C has therefore committed the offense declared in this section and is liable to the punishment for murder. इसीलिए C liable रहेगा। तो हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि अबेटर वाले प्रोविजन में कितने एक्सप्लेनेशन है, तो 5 है, तो 5 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों प्रोविजन, पांचों एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। Fifth is talking about conspiracy. Fourth is talking about abatement of an abatement. Third is talking about that the person should not be required capable by law. Second is talking about that just because you are abating, that is enough. Further act is there, or still you are asking someone not to do that thing or omitting that thing, you are lying. तो एक्सप्लेनेशन 1 में आप जेल वाला एग्जांपल याद रखिए, जेल के आप जो भी वहाँ पे इंचार्ज है उसको आप मना कर रहे हैं खाना देने के लिए, सो आप आपकी ड्यूटी तो नहीं है लेकिन उसकी ड्यूटी आप उसको रोक रहे हैं। बाकी 2, 3, 4, 5 इलस्ट्रेशन है, उन इलस्ट्रेशन से आप समझ सकते हैं। 47 में क्या लिखा है? अबेटमेंट इन इंडिया, ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। A person abates an offense within the meaning of this law within India, abates the commission of any act beyond, without and beyond India, which would constitute an offense if committed in India. A in India instigates B, a foreigner in country X, to commit murder in that country. A is guilty of committing murder. इंडिया में बैठ के फॉरेन
पूरी कंट्री में कुछ भी एक्ट कराते हैं, यू आर लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ 48 abatement outside India for offense in India. Abatement outside India for offense in India. कितने offense हो और outside से आप abate कर रहे हैं. A person abates an offense within the meaning of the sector who, without and beyond India, abates the commission of an act in this in India, which would constitute an offense if committed in India. A in country X instigated murder in India. A is guilty. दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठ के इंडिया में अटैक करा रहे हैं. So as per section 48, they are liable to be punished in भारतीय न्याय से. कोई भी पर्सन है राइट जो आउटसाइड इंडिया से अबेट कर रहा है, इंडिया में ऑफेंस कराने की कौन लोग कर रहे हैं उनके अबेटमेंट की बेसिस पे, दे आर लायबल. 49 we have done. Now we have 50. As you can see, there are so many provisions of abatement, right? Punishment of abatement if person does act with different intention from that of the. अबेटमेंट का क्या पनिशमेंट होगा अगर जिसने एक्ट किया है उसका इंटेंशन कुछ और है. मान लीजिए ए बी को इंस्टिगेट करता है कि मर्डर करना है, बी बोलता है कि हाँ मैं कर दूंगा. बी एक्चुअल में इंस्टिगेशन पे नहीं कर रहा है, खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए या उसका भी बीच किसी के साथ झगड़ा है, इसीलिए उसके मर्डर करने को तैयार है और मारने को. Whoever abates the commission of an offense shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that of the abater. अबेटर ने जो ज्ञान आपको दिया, आप उस ज्ञान के अलावा दूसरे इंटेंशन या नॉलेज के साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो भी आपको अबेट किया गया था उसके अलावा. सो जो पर्सन होगा अबेटर जो होगा shall be punished with punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abater and with no other. तो लिखा है कि जो अबेटर है उसको पनिशमेंट कौन सा, punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abater and with no other. जिस इंटेंशन और नॉलेज से मैं एक्ट चाह रहा था अगर वही एक्ट होता तो मैं अबेटमेंट में लायबल होता. अब वो कुछ और गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल आई एम लायबल फॉर ओनली दैट एक्ट जिसको मैंने अबेटमेंट कराया. मैंने मर्डर करने के लिए अबेटमेंट किया, आप मर्डर ना करके आप चोरी करके आए तो मैं आपकी चोरी के लिए लायबल नहीं हूँ, लेकिन अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए मैं लायबल. 51 liability of abater when one act abated and different act is done. अबेटर की क्या लायबिलिटी होगी जब एक एक्ट को अबेट किया गया लेकिन कुछ और कर दिया. 51 और 50 में फर्क है. 50 में इंटेंशन और नॉलेज की बात होती है कि चाकू जो मारना है ना वो ऐसे मारना है, ऐसे नहीं मारना है, दैट इज इंटेंशन नॉलेज वाला खेल. 51 इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एक्ट. आपने चाकू से मारने को बोला, वो सिर्फ प्रीवियस हट करके आ गया डंडे से मार के. सो डिफरेंट एक्ट अबेट कुछ और हुआ था और डिफरेंट एक्ट हो गया है. When an act is abated and a different act is done, the abater is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abated. जब कोई एक्ट को अबेट किया है और डिफरेंट एक्ट हो गया है तो जो अबेटर है उसको सजा मिलेगी फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट. कि जैसे आपने अबेट किया है उस पर्सन को फॉर दैट ऑफेंस, उसके लिए तो वो लायबल है. चाहे एक्ट दूसरा हो गया, आपने जो अबेट किया था उसके लिए तो आप लायबल रहे. प्रोवाइडेड दैट the act done was a probable consequence of abatement
and was committed under the influence of instigation or with aid or in pursuance of conspiracy which constitute abatement। बोल रहा है यहाँ पे, बोले कि एक्ट डन में हम उस चीज को भी कवर करेंगे। हो सकता है मैंने तो ये बोला था कि जाके मर्डर करके या फिर जाके चोरी करके वापस, चोरी करवाने के लिए मैंने अबेटमेंट करा, मैंने जिसको अबेटमेंट करा जिसके साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हूँ या किसी को मैंने जिसको इंस्टिगेट किया, इंटेंशनल एड किया, वो जब जेल में एंटर हुआ तो उसको ने एक मेंबर ने पकड़ लिया चोरी करते हुए। और सेविंग हिज लाइफ ही fought with that person and later on caused the death of that person also। मैंने तो चोरी करने के लिए आपको बोला, आप डेथ भी करके आ गए। क्यों करके आए? क्योंकि आपको बच के बाहर से निकलना था, लेकिन आप नहीं करते तो पकड़ में आ जाते। सो इन दिस केस जिसने अबेटमेंट किया वो चोरी के लिए तो लाइबल है, अबेटमेंट की अटेम्प्ट टू मर्डर किया ना इसने, चोरी के लिए तो लाइबल ही है। When an act is abated, different when the abater is liable for the act done in the same manner and the same extent as he had directly abated, provided that the act then was probable consequence of abatement and was committed under the influence of investing. Where मैं आपको भी एग्जांपल दे रहा था, एग्जांपल से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। लेट ओपन द, कैन यू प्लीज जस्ट रिमाइंड मी किस, There was a break, so I could not hear you properly. ओके, लाइबिलिटी डिफरेंट एक्ट डन बोलता है कि जिस चीज को मैंने किया वो करके आए आप, तो मैं लाइबल हुई। लेकिन मैंने आपको कुछ बोला और आप कुछ और करके आ रहे हैं, मुझे कुछ और करके आए हैं उसके लिए मैं लाइबल हूँ। मैं सिर्फ जिस एक्ट को अवॉइड किया था उसके लिए लाइबल। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का, कि मैंने आपको चोरी करने के लिए बोला था लेकिन आप बच के निकलना चाह रहे थे घर से क्योंकि आपको घर वालों ने पकड़ लिया था, तो आपने वहां पे एक पर्सन की डेथ हो सकती। तो इट इज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्ट, क्योंकि आपको जो चोरी करने के लिए बोला था आपको उसको बचने के बाहर भी आना पड़ा। अगर वो बच नहीं पाता तो जेल चला जाता, पकड़ में आ जाता। तो उसने बचने के लिए सामने वाले का मर्डर किया। तो यहाँ पे एज एन अबेटर आप चोरी के लिए तो लाइबल हैं, साथ में मर्डर के लिए भी लाइबल। फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एज वेल एज मर्डर, फॉर बोथ यू आर लाइबल। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंस्टिगेट अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड and gives him poison for that purpose. The child, in consequence of the instigation by mistake, puts the poison into the food of Y, and which is by the side of that of Z. ए ने इंस्टिगेट किया एक चाइल्ड को कि जेड के खाने में जहर मिलाओ। जेड जो है वो जो एक्चुअल जो बच्चा है जो इसको जेड के खाने में जहर मिलाना है, वो वाई के खाने में मिला के आ जाता है बाय मिस्टेक। Here, if child was acting under the influence of A's instigation and the act was done under the circumstances, probable consequence of the abatement, A is liable in the same manner and to the same extent as if he had instigated the child to put the poison into the food of Y. तो गलती बच्चे ने करी है, बट आपके एक्ट का एक वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। बच्चे ने गलती करी क्योंकि उसको लगा कि वो जेड है, बट आपका था कि जेड को ही खत्म करना है, लेकिन वाई खत्म हो गया। तो आपने जो एक्ट किया बच्चे को उकसाने वाला, और बच्चे से जो गलती हो गई है और वो आपके इंस्टिगेशन में काम कर रहा था, यू आर लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर ऑफ वाई एज वेल। ऑफेंस ऑफ मर्डर बेसिकली अबेटमेंट ऑफ मर्डर हो जाएगा और आपको सजा मिलेगी। आगे है ए इंस्टिगेट बी टू बर्न्स जेड्स हाउस, बी सेट फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। बी ने जेड को बोला, ए ने बी को बोला था कि आपको जेड का घर जलाना है,
उसने घर जला दिया लेकिन उसी टाइम वो चोरी भी करता है। तो इसमें देखिए ए दो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ हाउस इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द, क्योंकि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का मतलब जो एक्ट किया जा रहा है उसी के साथ कुछ ना कुछ एक्ट होगा जो एज पर द लॉ या एज पर द सिचुएशन रिक्वायर्ड है, तो वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, अदरवाइज नॉट। सो आग लगाने को बोला और आप चोरी करके आ गए, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। चोरी के लिए मैं लायबल नहीं हूँ, आग लगाने के लिए। A instigate B and C to break into in a inhabited house at midnight for the purpose of robbery, provides them with arms for that purpose. B, C break into the house, being resisted by J, one of the inmates, murder J. Here, if that murder was probable consequence of abatement, A is liable to the punishment provided for. तो ए ने सबसे पहले तो हाउस ब्रेकिंग के लिए बी और सी को तैयार किया। हाउस ब्रेकिंग करके टाइम उनके घर में एक जेड मेंबर था, उससे झगड़ा हो गया, उसने देख लिया होगा, जेड को उन्होंने मारा। तो ए दो ऑफेंस के लिए लायबल है अबेटमेंट में, एक तो हाउस ब्रेकिंग के लिए, दूसरा मर्डर के लिए, क्योंकि ये मर्डर एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। क्लियर है? 51 52 अबेटर पेन लायबल टू cumulative punishment for act abated and for act done. अबेटर कब लायबल होगा? cumulative, एक साथ जितने भी पनिशमेंट है, cumulative punishment for act abated and for act done. जो आपने अबेट किया है या जो जो आपने एक्ट किया है उसके लिए आप सब पनिशमेंट एक साथ उनके लिए लायबल हो सकते हैं। If act for which abater is liable under section 51 is committed in addition to the act abated and constitute distinct offense, abater is liable to the punishment for each of the offenses. आपने ऑफेंस आपने बुलाया कि जाके वो जो पुलिस वाला है उस पुलिस वाले को पकड़ के अरेस्ट करके उसकी नाक तोड़ के उसका खत्म करो, तो आप उसकी मर्डर करवाना चाहते हैं पुलिस वाले के लिए, तो पुलिस वाले की आपने डेथ कॉज कराई। सो इट इज एन एक्ट जो कोई करेगा, आपने इंस्टिगेट किया किसी को जो डेथ कॉज करके आएगा। ऑल्सो पुलिस ऑफिसर इज अ पब्लिक सर्वेंट, तो आपने पब्लिक सर्वेंट को नुकसान पहुंचाया, देयर इज एनी लॉ रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक सेफ्टी कि पब्लिक सर्वेंट के साथ अगर कुछ हार्म हुआ ऑन ड्यूटी तो फिर उसके लिए अलग से पनिशमेंट रहेगी। सो यू ओनली इंस्टिगेटेड फॉर द एक्ट, बट यहाँ पे एक डिफरेंट ऑफेंस भी बन रहा है आपके जो एक्ट बताए गए उनसे। जो आपने बताया कि ये एक्ट करना है, उसने वो एक्ट किया, तो आपने जो एक्ट किया एक्चुअल वो तो ऑफेंस है ही, दूसरा चीज भी ऑफेंस बनी गई है एज एन एक्ट, तो यहाँ पे आप लाइबल रहेंगे और आपको सजा मिलेगी उस दूसरे ऑफेंस के लिए भी। इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए इंस्टिगेट बी टू रेजिस्ट बाय फोर्स और डिस्ट्रेस मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। ए ने इंस्टिगेट किया बी को, जो पब्लिक सर्वेंट है उसका फोर्स है, उसको रेजिस्ट करो, उसको धक्का दो, आगे बढ़ाओ। बी इन कॉन्सिक्वेंसेस रेजिस्ट दैट डिस्ट्रेस इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस बी वॉलंटरी कॉजेस grievous hurt to the officer executing the distress। और वो कर रहा है धक्का मुक्की, उस पे जेड जो एक पुलिस ऑफिसर है, यहाँ पे जेड नहीं है तो कोई भी एक पुलिस ऑफिसर है उसको वॉलंटरी हर्ट होगा। बी कमिटेड बोथ द ऑफेंस, एक तो रजिस्टर किया डिस्ट्रेस को और ऑफेंस ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, ये दो ऑफेंस हुए। B is liable to punishment for both these offences, and if A knew that B was likely to voluntarily cause grievous hurt and resisting of distress, A will also liable to the punishment for each of the offences। और अगर A को लगता था कि हाँ ये भी अगर ऐसा करेगा तो पब्लिक सर्वेंट को हार्म हो सकता है, तो A भी दोनों ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए लाइबल है। क्लियर है ये? Yes, sir. 53 liability of abater for an effect caused by act abated different from that intended by abater। अबेटर की लाइबिलिटी है फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड, जो इफेक्ट आया बाय एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय अबेटर। अबेटर का जो इंटेंशन था वो कुछ और था, एक्चुअल रिजल्ट कुछ और आया, जो रिजल्ट आया उसमें अबेटर की क्या लाइबिलिटी है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके सर पे एक डंडा मारूं या पीठ पे एक डंडा मारूं सिर्फ सबक सिखाने के लिए, और मुझे ये भी नहीं पता है कि आप एक पेशेंट हो, आप बहुत फीवल हो, बीमार हो, आपके एक डंडा पड़ेगा आपकी डेथ हो सकती है।
मैंने आपके सर पे एक डंडा मारा, जिस मरवाया किसी को, अबेटमेंट करा किसी ने और मारा, आपकी डेथ हो गई। तो ये प्रोविजन ये बोल रहा है, देख लीजिए, when an act is abated with the intention on the part of the abater of causing a particular effect, and an act for which the abater is liable in consequence of the abatement causes a different effect from that intended by the abater. जो अबेटर चाहता था उसके अलावा कुछ इफेक्ट आ गया है, अबेटर इज लायबल फॉर द इफेक्ट कॉज्ड। जो इफेक्ट आया अबेटर के बोलने पे, आपने तो बोला था सिर्फ इसको मार के खत्म करो, लेकिन वो मरा नहीं और कुछ परमानेंट लॉस हो गया। तो अबेटमेंट ऑफ मर्डर और अबेटमेंट ऑफ ग्रीवियस हर्ट आप दोनों के लिए लाएंगे। In the same manner and to the same extent as if he had abated the act with the intention of causing effect, provided he knew that the act abated was likely to cause that effect. बस रिक्वायरमेंट यही है, he knew, उसे ये पता हो, that the act abated was likely to cause that effect, कि वो जो एक्ट अबेट किया जा रहा है उससे ये इफेक्ट भी हो सकता है। मारने के लिए चाकू दिया है तो हो सकता है ना जिंदा आदमी ना मरे, सिर्फ डेथ ना हो, ग्रीवियस हर्ट से भी बच के आ सकता है, सिंपल हर्ट से भी बच के आ सकता है, एक खरोच भी नहीं आया तो अटेम्प्ट मर्डर करके अबेटमेंट हो सकता है। Section 54, abater present when offense is committed. Whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abater is present if, when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, shall deem to have committed such act or offense. जब ऑफेंस हो रहा है उस टाइम आप भी वहीं खड़े हैं एज एन अबेटर। तो जब कभी भी who is absent would be liable to be punished as an abater, अगर वो absent है तो वो तो abater ही है। अगर वो present है, whenever any person is present when the act or offense or she would be punishable in consequence of abatement is committed, जिसके लिए उसको सजा मिलेगी कि आपने ये अबेटमेंट कराया है तो आपको सजा मिलनी चाहिए, he shall deem to have committed such act or offense, तो ये माना जाएगा वो जो एक्ट किया गया है वो खुद ने ही किया है अगर उसकी प्रेजेंस वहां पे है जहां पे ऑफेंस का कमीशन हो रहा है। Recently in RJS exam also there was a question related to this illustration particular। एक पर्सन है जिसने अबेटमेंट किया और मर्डर किया, जो भी पर्सन जिसको अबेट किया उसको, और जब मर्डर किया तो वो पर्सन वहीं खड़ा हुआ था। तो व्हाट रीजनिंग विल यू डिडक्ट, तो हम क्या बोलता रहे हैं, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस। तो ये माना जाएगा वो जो एक्ट है या ऑफेंस है वो उसी ने कमिट किया है, जिसने इंस्टिगेट किया था, जिसने एड किया था या जो कॉन्स्पिरेसी में आया था, चाहे उसने नहीं किया, बट ये माना जाएगा कि उसी ने किया। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ वाले ऑफेंसेस का अबेटमेंट हुआ। Whoever abates the commission of an offense punishable with death or life shall, if offense be not committed in consequence of the abatement and provision is made under this Sanhita for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of either description extend to 7 years, also as a fine, if any act which the abater is liable in consequence of abatement and which causes hurt to any person is done, the abater shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years and shall also liable to fine। 55 नंबर का ये बोलता है कि आप किसी एक ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट करते हैं जिसका पनिशमेंट डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब कभी भी आपने कोई ऑफेंस को वो क्या किया है, अबेट किया है, but that offense be not committed in consequence of the abatement, और चाहे वो एक्ट कमिट नहीं हुआ है, कोई प्रोविजन नहीं है इस संहिता में उस पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट के लिए, तो उसको पनिशमेंट कौन सा देना है, 7 साल तक का देना है, क्योंकि डेथ और एलआई तो हम दे नहीं रहे। जो जैसा ऑफेंस है जिसके लिए बोला है वो ही कर दो, किसी को मार तो सकते नहीं है, तो बोले डेथ है उसके लिए अबेट कर रहा है, 7 साल तक की आप सजा दे दो और साथ में फाइन दे दो। एंड इफ एक्ट फॉर विच अबेटर इज लायबल in consequence of abatement
and which causes hurt to any person is done, the abater shall be liable to imprisonment extend to 14 years. आगे लिख दिया है 7 year and also liable if the act for which abater is liable in consequence of abatement. अबेटमेंट होने की वजह से अबेटर लाइबल है, आपने किसी को उकसाया था मारने के लिए, एंड विच कॉजेज हर्ट, और आपने जिसको अबेटमेंट करने के लिए उकसाया उस पर्सन ने कोई ना कोई हर्ट कॉज कर दी. सो द अबेटर शेल बी लायबल टू imprisonment of either description for a term which may extend to 40 years, shall also liable for fine. तो आपके लिए सजा बता दी है 14 साल. 14 साल आपको जेल में रहना पड़ेगा. अगर डेथ पेनल्टी वाला है तो या तो 7 साल या 14 साल. डेथ पेनल्टी के लिए हम सेक्शन 9 इधर जो है ना सेक्शन 49 उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं. 49 जनरल बात कर रहा है कि अबेटमेंट हुआ तो ये पनिशमेंट होगी 3 साल का. और 49 में फॉर द ऑफेंस, जो भी ऑफेंस हुआ है उसका. 50 इलस्ट्रेशन है इसका. 8B2 murder Jed, offense is not committed. If B had murdered Jed, he would have been subject to the punishment of death or LI. Therefore, he is liable to be imprisonment for a term which may extend to 7 years, also to fine. And if hurt be done to Jed in consequence of the abatement, he will be liable to imprisonment for a term which may extend to 14 years. अगर एक्ट हुआ है तो 7 साल, एक्ट ऐसा हुआ है कि हर्ट भी कॉज हो गया है तो 14 साल आपको जेल रहना पड़ेगा. किन में? उन ऑफेंस में जिनका पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है. क्लियर है? आगे देखिए अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट. अब आपको ऐसा लग रहा है अबेटमेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, क्या है समझ में नहीं आ रहा वैसे वैसे. तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि जितना पढ़ाया ना आज उसको एक बार आप रिवाइज कर लें. फर्दर चाहे अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जितना अबेटमेंट आपको बताया है आप उसको समझ के एक बार कॉपी में नोट्स हल्का हल्का बना ले. प्लस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का फर्क पता होना जरूरी है. अगर फर्क पता है तो आपका काम हो जाए. तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में देयर शुड बी सम ओवर्ट एक्ट. इन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ओवर्ट एक्ट. ठीक है. राहुल सर आज क्लास नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ सम रीजंस. वो घर निकल रहे हैं अपने वहां पे, तो वो संडे मॉर्निंग आपकी क्लास लेने का प्लान कर रहे हैं. तो आप उन्हें सुटेबल टाइम ग्रुप में मैसेज कर दें सो दैट संडे को आपकी क्लास ले पाए. Okay, sir. जस्ट अ मिनट.